Hello friends, this is the third lecture of the series acid-base titration. In first two lectures we discussed about definition of acid, base, then the different theories of acids, base, then different theories related to indicators used in acid-base titration. So we discussed all these things in previous two lectures. So in this lecture we will be discussing about different types of acid-base titration, like titration of a strong acid with strong base, strong acid with weak base, weak acid with strong base, and so on. So we will be discussing all this in this lecture. So let's start the lecture. First one is titration of strong acid with strong base. तो strong acid में HCl अगर ले लेते हैं और strong base में NaOH, तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा titration of strong acid with strong base का. तो in this titration we will be doing titration of 0.1 molar HCl with 0.1 molar NaOH. In this, in the conical flask, we will be taking 100 ml of 0.1 m HCl, and in burette we will be taking 0.1 molar NaOH, and we will be doing the titration. This is the reaction which takes place when this titration occurs. HCl will react with NaOH and it will yield NaCl and H2O, and the H plus ion from HCl and OH minus ion from NaOH, these two combines to form this H2O molecule. So in this way the reaction takes place during this titration, when titration of 0.1 molar HCl is done with 0.1 molar NaOH, and in this titration H plus ion from HCl get neutralized by OH minus ion from NaOH. So when all the H plus ion get neutralized by OH minus ion, the pH of the solution will be neutral, that is 7. Suppose when the titration is starting, at that time in conical flask only HCl will be there, okay, and this HCl is strong acid, and since this is strong acid, it will be in dissociated state, that is H plus and Cl minus. So at starting the concentration of H plus will be very high, and since the concentration of H plus is very high, the pH will be very low, means the solution will be very acidic. So as NaOH is added, gradually the H plus ion from this HCl will be neutralized by OH minus ion from NaOH, and a time will come when all the H plus ion present in 100 ml of HCl will be neutralized by OH minus ion of NaOH. At that point the pH of this solution will be around 7, okay, and this point is called equivalence point, and we have to determine that equivalence point in this titration. So for that indicators are used, and we have to use that indicator which can detect that pH change during at that end point, means when the pH of solution is around 7, then only that pH should show color change, then only we will be able to detect the end point. तभी हम उस एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि एंड पॉइंट में पीएच जो है वो 7 के अराउंड आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि जितना भी HCl था 100 ml जो HCl लिया गया था
उस 100 ml HCl में जितना भी H+ आयन होगा वो सभी जो है आपने ब्यूरेट से जो NaOH दिया है वो NaOH में OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज होता जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पूरा H+ आयन जो है धीरे धीरे कम होता जाएगा और H+ आयन का कंसंट्रेशन जैसे ही कम होता जाएगा वैसे वैसे जो pH है वो बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में pH देखिए यहाँ कम रहेगा, फिर धीरे धीरे pH बढ़ता जाएगा जैसे जैसे NaOH ऐड होता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा H+ आयन जो है वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा OH माइनस आयन से। तो उसी पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट बोलते हैं और उसी को एंड पॉइंट भी बोलते हैं और उसी को हमें डिटरमाइन करना है। तो इंडिकेटर भी वैसा ही होना चाहिए जो कि उस पॉइंट पे कलर चेंज शो करे ताकि हम उसे डिटेक्ट कर पाए। सो वी हैव टू सेलेक्ट दैट indicator which can show color change at this pH range 4.3 to 9.7. ओके, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो pH चेंज है वो बहुत ही शार्प हो रहा है। जो pH चेंज है अराउंड देखिए 4.7 से वो अराउंड 10 पॉइंट कुछ पे जा रहा है। तो हमें ऐसा pH ऐसा इंडिकेटर चूज करना है जो कि इस pH रेंज पे अपना कलर चेंज करता हो। सो वी हैव टू चूज दैट इंडिकेटर which has pH range between 4.3 to 9.7 and phenolphthalein is one of those indicators which has pH range of 8.2 to 10, not exactly in this range but this range comes within this range। तो इसलिए फिनोल्फथलीन को हम इंडिकेटर चूज कर सकते हैं इस टाइट्रेशन के लिए और जो फिनोल्फथलीन होगा वो उस मीन्स जैसे ही एंड पॉइंट आएगा वो कलर चेंज शो करेगा। एंड ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि फिनोल्फथलीन जो है वो कलर चेंज कैसे करता है। और उसी तरह 0.01 मोलर अगर सॉल्यूशन है HCl का तो उसके लिए जो इन्फ्लेशन रेंज होता है जहाँ पे ये आपका कलर चेंज होता है मीन्स जो pH है वो अराउंड 7 हो जाता है वो है 5.5 to 8.5। So for this means for 0.1 molar HCl the inflation range was 4.3 to 9.7. Similarly for 0.01 molar HCl solution the inflation rate will be, range will be 5.5 to 8.5. So for this phenol red will be used as indicator. In the same way for 1 molar HCl solution inflation range is 3 to 10.5 and in this case also phenolphthalein will be used as indicator. So this is all about titration of strong acid with strong base. So in titration of a strong acid with strong base what we saw that we did titration of 0.1 molar HCl with 0.1 molar NaOH and we took 100 ml of 0.1 molar HCl in conical flask and in burette 0.1 molar NaOH was filled. In the starting since HCl is a strong acid H+ ion concentration will be high and pH will be very low, it will be very acidic. So as NaOH is added H+ ion will be gradually neutralized by OH minus ion of NaOH and pH will gradually increase and a time will come when all the H+ ion of conical flask will be consumed by OH minus ion of NaOH and at that point the pH will be 7 and this point is called equivalence point and this point is also called as end point and we have to detect that end point and for selection for detection of end point the indicator used in this titration is phenolphthalein because phenolphthalein has same in pH range
as that of this inflation range. So in this range, phenolphthalein shows color change. So phenolphthalein is used as indicator in this titration. Similarly, if we are doing titration, suppose we are doing titration of 0.01 molar HCl solution, in that case the inflation range will be 5.5 to 8.5 pH. And what is this inflation range? Inflation range means in this pH range the endpoint exists. So in this case phenol red will be used as indicator. And similarly for 1 molar HCl solution, the inflation range is 3 to 10.5 pH, and in this case phenolphthalein is again used as indicator. So this is all about titration of strong acid with strong base. Now we will see next titration type. So this is the next one, titration of weak acid with strong base. Earlier we saw strong acid with strong base. This is weak acid with strong base. तो यहाँ पर हम देखेंगे वीक एसिड का टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ. तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो NaOH ही रखते हैं, मीन्स 0.1 मोलर NaOH का टाइट्रेशन होगा के साथ टाइट्रेशन होगा, और वीक एसिड में यहाँ पर हम एसिटिक एसिड यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे भी 100 ml एसिटिक एसिड सॉल्यूशन लिया जाएगा. 0.1 मोलर एसिटिक एसिड भी है, 0.1 मोलर NaOH भी है. So when the titration will proceed, this reaction will take place. Acidic acid will react with NaOH and it will give a salt of acetic acid, sodium salt of acetic acid along with liberation of water. Some difference is there between titration of a strong acid and strong base and this weak acid and strong base. What is that difference? We will be discussing. So first difference is, being a weak acid, dissociation of this weak acid takes place at little slower rate. Okay? क्योंकि जो एसिडिक एसिड है, अब स्टार्टिंग में तो आप कोनिकल फ्लास्क में क्या लिए हुए हो, कोनिकल फ्लास्क में आपने एसिटिक एसिड लिया हुआ है. अब ये जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है. तो ये हमें पता है कि जो वीक एसिड है उनका डिसोसिएशन जो होता है वो थोड़ा अच्छे से नहीं होता है, स्लो होता है. अब डिसोसिएशन अगर अच्छे से नहीं होगा तो ये रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा. ठीक है, अब ये रिएक्शन अगर नहीं होगा तो H+ आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये रिएक्शन ही नहीं हो रहा है. अब ये रिएक्शन ही नहीं होगा तो H+ आयन नहीं बनेगा. H+ आयन नहीं बनेगा मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन लो होता जा रहा है. तो जब टाइट्रेशन अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं है, ठीक है, अभी टाइट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, आपने कोनिकल फ्लास्क में सिर्फ एसिटिक एसिड लिया हुआ है, तो उस केस में H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है. तो जितना होना चाहिए उससे कम रहता है. तो स्टार्टिंग में जो pH है वो हमने जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में ये देखा था कि जो pH है स्टार्टिंग में वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि डिसोसिएशन बहुत अच्छा होता था और H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता था. उसी तरह यहाँ पे वीक एसिड के केस में H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहेगा. तो इसलिए स्टार्टिंग में यहाँ पे जो pH होगा वो थोड़ा उतना कम नहीं दिखेगा आपको. देखिए यहाँ स्टार्टिंग में ही जब 0 ml NaOH ऐड हुआ है तभी यहाँ pH 3 के अराउंड आ रहा है, तो ये उसी वजह से आता है. तो एक ये डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में. यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में क्या होता है, स्टार्टिंग जो pH है वही थोड़ा ज़्यादा रहता है. क्यों? क्योंकि डिसोसिएशन जो हो रहा है वो उतने अच्छे से एसिटिक एसिड का नहीं हो पा रहा है और H+ आयन का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग से ही उतना ज़्यादा नहीं है. So this is the first difference. And what is the second difference? Second difference is the salt formed during the titration is of weak acid and strong base, which gives
common ion effect which suppresses dissociation of weak acid। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब जैसे कि टाइट्रेशन जब स्टार्ट होगा, तो टाइट्रेशन जब होगा तो ये वाला रिएक्शन होगा, एसिटिक एसिड NaOH के साथ रिएक्ट होता है और ये देखिए सॉल्ट बना रहा है। अब ये सॉल्ट है, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है, तो इसका जो डिसोसिएशन होगा वो बहुत जल्दी होने लगता है। ठीक है, तो डिसोसिएशन होगा तो ये टूटेगा, तो टूटेगा तो देखिए ये रिएक्शन होगा, यहाँ रिएक्शन होगा और ये आपका सोडियम आयन और एसिटेट आयन बन रहा है, ये डिसोसिएशन होने लगेगा जो सॉल्ट बन रहा है उसका। अब जो कोनिकल फ्लास्क है, उस कोनिकल फ्लास्क में देखिए, ये जो कोनिकल फ्लास्क में इसमें एसिटिक एसिड पहले से था, तो ये तो रिएक्शन हो ही रहा था। अब ये रिएक्शन जो हो रहा था उसके साथ आपने NaOH ऐड करने लगा तो ये रिएक्शन होने लगा, लेकिन जो सॉल्ट बन रहा है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये रिएक्शन भी हो रहा है। अब ये जो रिएक्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये देखिए एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अब अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये वाला रिएक्शन ऐसे ही स्लो हो रहा है और ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है, तो एसिटेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा। अब ये इसका कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होने लगेगा तो ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, मतलब एसिटेट आयन जो है वो इस एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन उतना फास्ट नहीं होगा, ये फर्दर और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट फर्दर डिक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन टेक्स प्लेस। और इसकी वजह से क्या होगा कि अब ये डिसोसिएशन अगर नहीं होगा, देखिए डिसोसिएशन अगर एसिटिक एसिड का नहीं होगा तो क्या होगा, डिसोसिएशन अगर एसिटिक एसिड का नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अब ये रिएक्शन अगर नहीं होगा तो H+ आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, एक तो पहले से ही कम था, ठीक, क्योंकि ये रिएक्शन स्लो था। अब रिएक्शन पहले से ही स्लो था, ऊपर से जो सॉल्ट बन रहा है उसकी वजह से एसिटेट आयन आ रहा है और इस एसिटेट आयन के कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ये रिएक्शन और स्लो हो जा रहा है, और ये रिएक्शन और स्लो हो जाएगा तो H+ आयन का कंसंट्रेशन और भी कम हो जाएगा, और H+ आयन का कंसंट्रेशन अगर कम और भी कम होगा तो pH क्या होगा, pH इंक्रीज होने लगेगा। पहले से ही इंक्रीज हो रहा था, अब पहले से ही ज़्यादा था, अब बहुत जल्दी इंक्रीज होने लगेगा। तो जैसे जैसे NaOH ऐड होता जाएगा ये सॉल्ट बनेगा, तो ये सॉल्ट डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के बाद ये कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ये एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन और भी स्लो हो जाएगा, H+ आयन का कंसंट्रेशन और कम हो जाएगा और pH इंक्रीज होने लगेगा। तो बहुत जल्दी pH इंक्रीज होता है, कौन से टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस में ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। एंड व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? थर्ड डिफरेंस इज दिस, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, जो कि सॉल्ट बन रहा है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस होगा, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस ऑफ salt at end point pH of solution further increased beyond 7। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में हमने क्या देखा कि इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो pH है वो 7 होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पे हम जब pH चेंज देखेंगे टाइट्रेशन में तो वहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH जो है वो 7 से ज़्यादा चला जा रहा है, वो एल्कलाइन हो जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो भी सॉल्ट बन रहा है उस सॉल्ट का फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस होने के बाद देखिए यहाँ पर एसिटिक एसिड तो वीक है तो ये इसी फॉर्म में रहेगा, बट NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो Na+ और OH- में रह रहा है। अब ये OH- का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, और जैसा कि हमें पता है कि OH- का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगा तो pH जो है वो 7 से आगे चला जाता है।
तो एंड पॉइंट आते आते ये होता है कि जो सॉल्ट बन रहा है वो सॉल्ट फॉर्म में रहता है तब तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से एंड पॉइंट पे जो pH है जो कि 7 होना चाहिए था वो 7 ना होके 7 से ज़्यादा हो जाता है। 7 क्यों होना चाहिए था? वो इसलिए होना चाहिए था कि जो एसिड है, एसिड में जितना भी आपका H+ आयन रहता वो NaOH से न्यूट्रलाइज होता, ठीक। अब ये NaOH से न्यूट्रलाइज हो जाता तो कोनिकल फ्लास्क में जितना भी आपका एसिटिक एसिड था वो पूरा का पूरा अब कंज्यूम हो गया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा न्यूट्रल हो जाना चाहिए था आपके कोनिकल फ्लास्क में जो भी मिक्सचर है, लेकिन जो सॉल्ट बनता है, जो सॉल्ट कोनिकल फ्लास्क में है उसका हाइड्रोलिसिस भी हो जा रहा है और हाइड्रोलिसिस होने की वजह से OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है, तो उसकी वजह से जो pH न्यूट्रल होना चाहिए था वो न्यूट्रल ना होके 7 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी एक डिफरेंस है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में विथ जब हम कंपेयर करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो कौन कौन सा डिफरेंस था? फर्स्ट डिफरेंस कि जो आपका वीक एसिड है उसका डिसोसिएशन ही स्लो होगा जिसकी वजह से H+ आयन का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ही कम रहता है, तो जो pH है स्टार्टिंग pH वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? दूसरा डिफरेंस ये है कि जो सॉल्ट बनता है वो फर्दर डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होने के बाद एसिटेट आयन बनाता है जो कि कॉमन आयन इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये जो रिएक्शन है आपका एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन ये थोड़ा स्लो हो जाता है। अब ये स्लो हो जाता है जिसकी वजह से H+ आयन कम बनेगा क्योंकि ये रिएक्शन ही स्लो हो गया। अब ये रिएक्शन अगर H+ आयन कम बनेगा तो pH जो है, एक तो पहले से ही pH ज़्यादा था, अब pH और ज़्यादा होने लगेगा। तो जैसे ही टाइट्रेशन स्टार्ट होता है pH बहुत जल्दी ही इंक्रीज करने लगता है। अब टाइट्रेशन हो रहा है तो सॉल्ट बन रहा है, जो सॉल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस भी होने लगता है। हाइड्रोलिसिस होने की वजह से क्या होता है? OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो एंड पॉइंट आते आते क्या होता है, जो OH माइनस आयन है उसके कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से pH जो 7 होना चाहिए था एंड पॉइंट पे वो 7 से ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस है। अब देखिए ये जो टाइट्रेशन जो चेंज हो रहा है pH चेंज, यहाँ पे देखिए 100 ml आते आते pH 7 होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 100 ml ही हमने एसिड लिया था, उसमें 100 ml बेस डालते तो न्यूट्रल हो जाता और pH 7 आना चाहिए था, जो कि आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में होता है। बट यहाँ पर 100 ml NaOH जैसे ही आपने डाला pH यहाँ 7 की जगह पे 8.7 हो रहा है, तो यहाँ एंड पॉइंट पे pH 8.7 हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी सॉल्ट बना था वो सॉल्ट में से कुछ सॉल्ट जो है उसका हाइड्रोलिसिस हो गया और हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो OH माइनस आयन बना दिया और OH माइनस आयन बनाने की वजह से जो मीडियम है वो अल्कलाइन हो जाता है, तो pH आपका 7 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में। अब यहाँ पे जब हम ये न्यूट्रलाइजेशन कर्व देखते हैं तो यहाँ पे जैसे जैसे आप NaOH ऐड कर रहे हो ये pH चेंज हो रहा है, तो ये जो ग्राफ बनता है इसको न्यूट्रलाइजेशन कर्व बोलते हैं। तो जब हम कर्व देखते हैं तो यहाँ पे देखिए शार्प pH चेंज हो रहा है एंड पॉइंट पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में भी शार्प था बट वहाँ रेंज थोड़ा बड़ा था, ठीक है, बट यहाँ तो रेंज और भी छोटा है, यहाँ पे 7.7 से 10 के बीच में है, बहुत ही छोटा है। जो रेंज है pH का वो बहुत ही कम है। तो यहाँ पे जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो ऐसा इंडिकेटर यूज़ होना चाहिए जिसका pH रेंज इसके बीच में आता हो। तो फिनोफ्थिलीन का आता है, फिनोफ्थिलीन का 8.2 से 10 है, तो जो कि इस रेंज के बीच में आता है। तो यहाँ पे इस टाइट्रेशन में भी जो pH मीन्स जो इंडिकेटर यूज़ होता है वो फिनोफ्थिलीन ही होता है। So this is all about titration of weak acid with strong base, and so in this lecture we discussed titration of strong acid with strong base
एंड टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आज के लिए फिर इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे और भी टाइप हैं एसिड बेस टाइट्रेशन के, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।